Up next is our celebrity talk. Definitely much awaited for everyone. This is for navigating through uncharted waters, the road to success. The speaker for the day is Satyendra Singh Lohia, sir, para swimmer. Satyendra Singh Lohia, born on 6 July 1987, is an Indian swimmer with 70% disability. On 24th June 2018, he crossed English Channel as a part of swimming relay team, which for the first time saw 4 para swimmers from Indian cross the English Channel. He completed the channel in just 12 hours and 26 minutes, setting a new record. Satyendra Singh received Vikram Award, the highest state-level sports award in Madhya Pradesh, for swimming from Chief Minister Shivraj Singh Chauhan. With him accompanying another star, Arpit Bhatia, my friend and founder, CEO, Serasoft. Business, he has won like Business World 40 Under 40, Economic Times Leader of the Change, Deloitte Fast 50 winner, Economic Times India Growth Champion. Please join me in welcoming Satyendra Singh Lohia sir and Arpit Bhatia to the stage. I'd like to have a round of applause from everyone for Satyendra Singh Lohia sir and Arpit. All right, a very warm good afternoon to everyone. I think the effect of the lunch has probably settled in a little bit. So coming in at a good time, I would assume. Extremely privileged to be here with the sports star from our very own state, Satyendra Singh Lohia. And the theme of this session, yeah, I think it deserves a louder applause, I would say. The theme of the session is navigating uncharted waters, and I think it's very apt for a Paralympian, a swimmer like Satyendra. And like Madam Anu said, my talk and my discussion with Satyendra here is not going to be that much about technology. It's more going to be about the struggles, the entrepreneurship, the leadership that all of us have to show at different times in our lives. So, a very warm welcome, Satyendra. It's an absolute honor to be with you. इसको कैसे करें आप चंबल के लाल भी हैं तो इसको हम हिंदी में करें कि इंग्लिश में करें? Thank you so much for giving to this opportunity because जब इंग्लिश में बात करते हैं तो एक माइंड से बात होती है. इस वजह से हम हिंदी में बात करेंगे तो दिल से बात होगी और दिल की बात बहुत दूर तक जाती है. बहुत खूब. I'll do the English version though, but मैं हिंदी ज़्यादा करूँगा. And मैं भी इंदौर का लाल हूँ, I may say that. So very well adept at Hindi. But I'll start with a couplet. हिंदी की बात हुई है. So जैसे तिल में तेल है, जैसे तिल में तेल है ज्यों चकमक में आग, जैसे तिल में तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है तू जाग सके तो जाग. ये मेरी टीचर ने मुझे सिखाया था. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सत्येंद्र, दिस इज माय एक्चुअली लीड अप टू योर क्वेश्चन. आपका साई यानी आपका स्विमिंग के प्रति पैशन ये कैसे जागा, कब जागा, आपकी लाइफ स्टोरी बताएं हम सबके लिए. थैंक यू सो मच. मैं भी 2 लाइन कहना चाहता हूँ. मेरा जो जीवन का उद्देश्य है, करे भैया बले आपनी छोड़ वीरानी यास और तेरे आगन नदिया बहे तो मरत प्यास. मेरे जीवन का यही उद्देश्य है. मैंने अपने आप पर विश्वास किया, अपने आप को सोचा कि नहीं, हमें अपने आप पर विश्वास किया. कहा कि जब हम अपने आप पर विश्वास करेंगे तो हमारे फैमिली वाले विश्वास करेंगे.
हमारी कलीग ट्रस्ट करेंगे, हम जिस जिले में रहते वो जिला ट्रस्ट करेगा, और आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश ट्रस्ट करेगा। जब पहले हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो सभी विश्वास करते हैं। जैसा कि आज हमने अपने आप पर भरोसा कर यहाँ तक बढ़े, तो आपकी जो नेस्कॉम कंपनी उसने हमको यहाँ बुलाया, तो इसके लिए मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हम सब थोड़े क्यूरियस हैं कि कहानी कहाँ शुरू हुई, आप कहाँ बॉर्न हुए, कैसे आप स्विमिंग में आए, कैसे आपका वो इंटरेस्ट जगा, आपने कैसे इन मुश्किलों को पार करते हुए इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, दूसरे कई अवार्ड जीते, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जीता, वो बताएं। वो जरूर से, और डेफिनेटली, क्योंकि मैं एक बिल्कुल, मेरा जो जन्म है वर्त भिंड में एक गाता गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ 1987 में एज ए नॉर्मल चाइल्ड। तो नॉर्मल चाइल्ड एज ए हम स्कूल में जाते थे, पढ़ाई करते थे, सब कुछ, बट कुछ टाइम बाद बोतल ग्लूकोज का डॉक्टर ने ड्रिप लगाया, जिस वजह से एक रिएक्शन हमारे बोथ लेग में क्रिएट हुआ। तो बोथ लेग में जब हम चलने के लिए जब थोड़े थोड़े चले तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद और प्रॉब्लम, वैसे प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो आई थिंक मैं 5 क्लास में था, 6 क्लास में था, तो एक हमारा जो सराउंडिंग एरिया है वो बहुत ही सिंपैथी के रूप से देखते हैं। जैसे किसी की घर में अगर बच्चा दिव्यांग हो, उसको प्रॉब्लम हो, तो उसको तो कहते ही हैं प्रॉब्लम, कुछ गलत किया होगा, उसके मदर फादर को भी गलत ट्रीट किया जाता है, और सहानुभूति के नजर से कहा जाता है कि ये जीवन में आगे क्या करेगा, इसके जीवन में एक प्रश्न लगा देते हैं उसकी बाहरी शारीरिक क्षमता को देखकर। उसको बताया जाता है, मेरे को ये भी बोला कि कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, रोटी मतलब यहाँ तक 2 जून की रोटी खाने का भी बता देते हैं कि आप किस तरीके से करोगे। बट मेरा एक ही सजेशन है, मैं अपने आप को उनको सबको सुना, और मैं उनको भी थैंकफुल बोलता हूँ जिन्होंने मेरे लिए चीजें कही। बट मेरा मानना है किसी भी परसेप्शन को हम उसकी बाहरी सुंदरता से न देखें, जो इंटरनली पावर होती है, जो मन की शक्ति होती है। तो मैं कहता हूँ माइंड ही, शरीर किसी भी कार्य करने के लिए शरीर के अंगों की जरूरत नहीं है, किसी भी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन, सोच, दृढ़ संकल्प और ऊर्जा कुछ कर गुजरने की ताकत होगी। तो मैं कहता हूं चाहे दिव्यांग हो, चाहे शारीरिक रूप से कितना ही अष्टपुष्ट, कितना ही प्रॉब्लम हो, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाएगा। जब मन में शक्ति नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं कहता हूं वो व्यक्ति कितना ही अष्टपट हो, वो दूसरों के सामने बहाना बनाता रहता है। इसीलिए मैंने इसी सोच इरादे के साथ मैं गांव से बढ़ा, फिर उसके बाद मैंने हाई सेकेंडरी महगांव में, भिंड में, वहां से किया मैंने। फिर उसके बाद लगा कि नहीं हमारी, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पापा फार्मर हैं, इतना कोई हमारा इकोनॉमिक रूप से हम बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो इस चीज़ों को हम आगे बढ़ते गए। फिर हमने सोचा किसी कार्य को अगर हम करेंगे तो समाज में ज़्यादा प्रेरणा जाएगी। फिर हमने स्विमिंग, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मेरी नदी है गांव में, वहाँ पर नदी मैंने स्विमिंग सीखी, तो काफ़ी लोगों ने बोला इसको, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, किस तरीके से आगे बढ़ोगे, स्विमिंग नहीं करो। बट मैंने जिद और जुनून के साथ स्विमिंग सीखी। फिर उसके बाद 2007 में मैं ग्वालियर आया अपने कॉलेज स्टार्ट के लिए। तो वहाँ पर डॉक्टर वी.के. डवास जी ने, डॉक्टर वी.के. डवास आप सभी ने नाम सुना होगा, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान जो ग्वालियर में है, वहाँ पर पैरा जो दिव्यांग लोग हैं उनको, अब तो पॉलिसीज बन गई हैं, पहले इतनी कोई पॉलिसीज नहीं थी। बट हमने वहाँ से, मेरे पास उस टाइम एक रिक्शा हुआ करता था जो हाथों से चलाते हैं, मैंने स्विमिंग की जो स्किल है वहाँ से अपने आप को डेवलप किया और अपने आप पर विश्वास किया। और उसी इरादे के साथ मैंने पहली बार 2 साल का कठिन ट्रेनिंग लेने के बाद 2009 में मैं पहली बार कोलकाता गया नेशनल खेलने के लिए। तो वहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल मिला। ब्रॉन्ज मेडल मिलने के बाद काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, न्यूज में आया। मैं कहता हूँ वो मेडल मेरे जिंदगी का एक सपना नहीं, एक लाइफ बना दी। उसने एक जीवन जीने का एक इरादा बना दिया, एक सोच डेवलप हुई। इस तरीके से लोगों ने अप्रिशिएट किया। आज हमने यहाँ पुरस्कार, आप मेरे को यहाँ बुलाइए, मेरे को ही नहीं,
उस सोच को भी अप्रिशिएट किया है जो लोग कहते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति कुछ कर नहीं सकते। आपने उस सोच को भी सम्मानित किया है, उस सोच को भी बढ़ाने का मौका दिया है। इसी तरीके से 2009 में मेडल जीतकर काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि किसी भी प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए एक दिन में प्रतिभा कोई बढ़ने के लिए एक दिन में नहीं बढ़ती। जब डेली उसको पुरस्कार रूपी प्रोत्साहन किया जाता है तो उस पौधे में फल लगता है, और वो फल कईयों को लिए एक मॉडल बनता है और आगे कईयों को उसकी एक छांव मिलती है। इसी तरीके से मेरा जो मेडल आया 2009 में, वो ब्रॉन्ज मेडल नहीं, मेरे एक जीवन का एक सपना मिला। मैं कहता हूं कोई भी खुशी को अपन जब कोई जीवन की खुशी होती है उसको महसूस करता है, शब्दों में बयां करने के लिए बहुत कुछ शब्द उसके लिए कम पड़ जाएंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई, और मैं इसको अगर एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्ट करूं तो हम सब जब कंपनी खोलते हैं, मैंने भी एक प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट करी थी, और हर जर्नी में ऐसे कुछ उनको हमारी कॉर्पोरेट भाषा में पिवट्स बोलते हैं कि जब हम चेंज करते हैं हमारी कोई स्ट्रैटेजी, कोई डायरेक्शन, उसको कॉमन भाषा में टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। तो क्या ये मेडल ही आपका पिवट या टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको एक और दिशा दी, कि कोई और चीज़ थी जिससे आपने अपनी दिशा को थोड़ा बदला और फिर उसके बाद से आप आगे बढ़ते गए? क्योंकि ये पिवट का हमारे कॉर्पोरेट पार्लांस में बहुत इंपॉर्टेंस है कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट मार्केट फिट और इन सब की बातें भी हुई हैं, कई बार वो पिवट करने के बाद वी गेट टू द राइट लाइन। सो उसके बारे में बताएं। श्योर, डेफिनेटली चेंज एक 2009 में जब मेडल आया उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, मतलब काफी टेक्नोलॉजी, इतना फेसबुक वगैरह तो अच्छे से यूज होने ही लगा था 10th 12th, बट टेक्नोलॉजी ने हमारे साथ बहुत ही मतलब एज ए फ्रेंडली बहुत हेल्प की है। मैं कहता हूँ आज टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज हम इतना अपने आप को नहीं, हम पर डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी को हमें पॉजिटिव उसको यूज करना है या निगेटिव यूज करना है। जब हम पॉजिटिव यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। साथ में आपने टर्निंग पॉइंट की बात कही, टर्निंग पॉइंट तो जब हमारे जीवन में आया ही, साथ में किसी के जीवन में हर चांस में गोल्ड मेडल आता है, गोल्ड चांस आता है, बशर्ते हमें उसको पकड़ना है या छोड़ के रहना है। कि अपने आप को ही व्यक्ति कहते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, अरे डजंट मैटर। मैं कहता हूं जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया खोया नहीं करते। होती सफलता उन्हें ही है जो अपने वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैं कभी भी अपने वक्त और हालात को कभी नहीं रोया। गांव से बिलोंग करता था, फाइनेंशियली रूप से वीक था। Because I went to London 2017, I can't able to speak single word, but I have tried to. इंटेलिजेंसी, लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंट होते हैं तो ही कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट बनने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, मगर मैं उसको फॉलो करूंगा तो मैं जरूर इंटेलिजेंट बन जाऊंगा। जैसे हमें टाइम पंक्चुअलिटी है, क्या उसके लिए इंटेलिजेंटी की बहुत जरूरत नहीं है। हम सही तरीके से काम करें वो भी एक इंटेलिजेंट नहीं मांगता है। हम टाइम के पंक्चुअल रहें, हम इथिक्स रहें, हम अपडेटेड रहें, अगर ये चीजें होंगी तो मैं कहता हूं उस व्यक्ति को इंटेलिजेंसी की कोई जरूरत नहीं है। तो जीवन में इसी उद्देश्य को मैंने फिर उसके बाद आगे बढ़ा। मैंने सोचा नहीं अभी तो हमें और कुछ, क्योंकि सफलता तो सर अचीव कर लेते हैं, मगर सफलता को हमें क्रिएटिव आगे इसी तरीके से जारी रखना, तो मैं कहता हूं वो दूसरों के लिए और अहम करती है। फिर हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से लोगों से कनेक्ट हुए, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने बहुत लोगों से कनेक्ट किया। पैरा के बारे में जानकारी नहीं थी, पैरा से किस तरीके से हम जानकारी करेंगे। फिर हमने टेक्नोलॉजी गूगल पे सर्च किया क्या होता है पैरा। हम कनाडा में हमने फिर धीरे धीरे नेशनल्स खेले। फिर 2014 में मध्य प्रदेश सरकार का विक्रम अवार्ड हमको दिया गया था। फिर हमने सोचा नहीं हमें तो और कुछ करना है। फिर हमने इंग्लिश चैनल, मैंने सोचा इंग्लिश चैनल हमने किसी मध्य प्रदेश में आज तक, क्योंकि जो कोस्टल एरिया होते हैं उनमें ज़्यादातर इंग्लिश चैनल स्ट्रीमर निकलते हैं, तो हमने मध्य प्रदेश से अभी तक किसी ने नहीं किया है। हमेशा एक कार्य में आप सभी से कहना चाहता हूं, ये ना सोचें हम कार्य कर रहे हैं, हम दिमाग में एक ही कार्य सोचना चाहिए कि अगर हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो हमारे देश का कार्य रुक जाएगा।
हमारे क्षेत्र का कार्य रुक जाएगा। तो मैंने हमेशा सर ये सोचा कि हम इंग्लिश चैनल नहीं करेंगे, हम स्विमिंग नहीं करेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश चैनल की हिस्ट्री में नहीं हो पाएगा। हमें हमेशा से एक सेल्फ स्वाभिमान की जरूरत रखनी चाहिए अपने देश के, अपने प्रदेश के। जब देश के स्वाभिमान है तो मैं कहता हूँ उसके लिए हमेशा कोई प्रॉब्लम मैटर नहीं करती। फिर उसके बाद जीवन में आगे बढ़ा। इंग्लिश चैनल के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंग्लिश चैनल में 25-30 लाख रुपए खर्चा आता है। काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, मैं इतना एफर्ट नहीं कर पाता। बट मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करके सर्च किया ऑनलाइन पर, बोला कि हमें ऑनलाइन में कितना फीस लगता है। इवन आप मानोगे मैं हिंदी में, वो कैसे कहते हैं, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। हम गूगल को उसमें हिंदी में लिखते, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते, फिर उसके बाद हम लंदन भेजते थे। बट उन्होंने बोला यू कैन रीड मैसेज इन हिंदी, आई कैन ट्रांसलेट। उन्होंने बोला हम खुद ही कर लेंगे, आप डोंट वरी। हम आपके जो एफर्ट्स हैं उसको मैं सल्यूट करता हूं। तो मैं समझता हूं जब चीजें ऐसी मिली पॉजिटिव रूप से, तो हमने चीजें उनको फाइंड आउट हुआ। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब 25 लाख रुपए लगने को थे, मगर हमारे पास 25,000 भी नहीं थे। बट हमने सोचा नहीं होगा। वो कैसे कहते, कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव हो सकता है, और कार्य हो तो कमर बांध लो तो सब संभव हो सकता है। हम मतलब पॉजिटिव सोचने में क्या जा रहा है सर, ना होगा वो बाद की बात है। हम पहले से क्यों सोच रहे कि होगा ही नहीं। वो तो टेक्नोलॉजी, बहुत से लोग जब हम जाते हैं ऐसा नहीं और मीटिंग बोल होगा ही नहीं। 95% तो दिमाग में हम वही 95% तो वैसे बोल सकते हैं ना। आवाज जाएगी क्या पीछे तक? कॉलर माइक कर सकते हैं क्या? 95% जो परसेंट वो तो हम थिंक करते ही रहते, वो जीवन में होती ही नहीं है हमारे। हम वैसे ही करें, ये होगा वो होगा, कुछ होता ही नहीं है। मैं कहता हूं जब हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा ही रिजल्ट आएगा। हम जब तक ऐसा सोचना चाहिए, हमें जितना दिख रहा है उतना चलो, जब वहां से आगे का दिखेगा तब हम वहां का डिसाइड करेंगे डायरेक्शन। तो ये चीज हमने सोचा अभी हमारे पास 25,000 है, यही भेज देते हैं, और ना होगा तब हम फिर आगे देखेंगे। सर आप इवन ट्रस्ट मतलब बताना चाहूंगा, मैंने 50 एप्लीकेशंस बनाई, विभिन्न टेक्नोलॉजी, हर कंपनी को भेजी। वह टाटा ट्रस्ट से हमारे लिए वहां से रिस्पांस आया, उन्होंने हमको 5 लाख रुपए दिए, और उन्होंने एक आस जगाई कि नहीं मैं तुम्हारे लिए पूरा खर्च करूंगा। बट फर्स्ट टाइम हम पहली बार सर इंग्लिश चैनल के लिए गए, कोई आइडियाज। मैं एक ही चीज समझता हूं कि एक गांव देहात से बच्चा निकलकर सक्सेस हो या ना सक्सेस हो, डजंट मैटर। उसको यही नहीं पता ग्वालियर आने का, ट्रेन में बैठने का सपना नहीं था, फ्लाइट में बैठकर लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचना एक हमारे लिए वही सबसे बड़ा मेडल था। हिथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचे, हमारे लिए वही बड़ा मेडल था। जब बीएसएफ ऑफिस में जाते वीजा के लिए, वही सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे परिवार में कोई बाहर नहीं गया जिसके पास 10 साल का यूएस का वीजा हो। मतलब सबसे बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं कहता हूं डजंट मैटर, हमें अपने छोटी छोटी खुशी, ऐसा नहीं है कि हम बड़ी खुशी हमें अपने आप को सेलिब्रेट करना है, हमें छोटी छोटी खुशी भी अपने आप को सेलिब्रेट करना है। जिस तरीके से छोटी छोटी बूंदों से बहकर एक समुद्र में बहुत बड़ा सैलाब लाती हैं, उसी तरीके से अपने जीवन में जब हम छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, जो हमें खुद ही पता नहीं पड़ता है। बहुत खूब। सो ये आपने अपने स्टोरीज के काफ़ी हमको ग्लिम्सेस दिए इसमें। ये क्लासिक हसल स्टोरी है, एज वी कॉल इट। एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमें बड़े लिमिटेड मीन से शुरू करके अपनी वीकनेसेस को देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। आपने उसका एक हमसे बहुत ज़्यादा ग्लोरियस एग्जाम्पल दिया है। बट मैं कहूँगा कि इन चीज़ों में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक हम काफ़ी यहाँ पर टेक लीडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इट्स अ वेरी लोनली पोजिशन एट द टॉप। किसी का कंधा नहीं मिलता उस पर रख के रोने के लिए हमको भी, यू नो, इन आवर कॉमन लैंग्वेज। सो हाउ डज वन डील with these ups and downs that we face
आप कैसे डील करते हैं? आपका हमारे लिए कोई मैसेज है व्हेन यू गो थ्रू रियली दीज अप्स एंड डाउन्स इन योर करियर एंड योर लाइफ? नहीं, ऑब्वियसली एक ह्यूमन नेचर है, एक नेचुरल चीज़ें हैं, हर किसी की लाइफ में अप्स डाउन आते हैं, बट वो हमें थिंक करना है कि हम किस तरीके से उसको टैकल करें, किस तरीके से हम उन पर पार पाया जाए। हमेशा ये कहता हूं कि हमेशा जीवन में हमेशा एक ही थिंक करता हूं, लाइफ में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आधा जीवन तो हम व्यक्ति को पता नहीं पड़ता है, हम जी लेते, यही नहीं पता पड़ता है हम कितने निकल गए, हम पीछे के बारे में सोचते रहते हैं। इसीलिए हम वर्तमान के बारे में अब सोचेंगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और एक दिन समय ऐसा आएगा फ्यूचर में हम अपने पास्ट पर प्राउड फील करेंगे। क्योंकि मेरे प्रॉब्लम हो गई तब हम इसी का रोना रोते रहते हैं, हम इसी के बारे में सोचते रहते हैं कि आई हैव प्रॉब्लम, हाउ कैन, कैसे हम इस चीजों को करेंगे, प्रॉब्लम हो गई। हमेशा ये सोचता था दिव्यांग हैं कैसे करेंगे, सहानुभूति का पात्र बन जाता। मैंने समझा एक ही बार, डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। जो व्यक्ति की सोच, जो दिव्यांग जो एटीट्यूड होता है, अगर वो नॉर्मल व्यक्ति में भी अगर एटीट्यूड सही नहीं है तो वो भी दिव्यांग है। तो हमें इस एटीट्यूड को अगर सही रखेंगे, मैं कहता हूं आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड अच्छा है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स तो आती हुई भी दूर हट जाती है। वेरी वेल सेड। इसमें मैं अब थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करता हूँ। हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं, हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये जो जर्नी है, आपने बीच में उसका रेफरेंस भी लिया था, पर थोड़ा डिटेल में बताएं, टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स में क्या नया आयाम खोल रही है? आपको क्या फायदा मिला टेक्नोलॉजी से? कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स हो, स्पोर्ट्स टेक में क्या नया हो रहा है, ऐसा अगर आप कुछ शेयर कर सके आपके एक्सपीरियंसेस से, तो दैट विल बी गुड फॉर आवर ऑडियंस। निको बहुत सी चीज़ें टेक्नोलॉजी के से हिसाब से आज मैं कहता हूं कि आज का जो जर्नी है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अहम रोल है। जैसे स्पोर्ट में मैं बताऊं, कोई भी चीज़ें हैं, हमें अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है, टाइमिंग का है, मैं मतलब कंप्यूटर के उसमें जाता हूं, किसी भी चीज़ को सर्च करना है तुरंत उसके अपडेट्स मिल जाते हैं। मगर टेक्नोलॉजी के जीवन में एक मैं कहता हूं बहुत बड़ा अहम रोल तो है। जैसे कि मैं 2007 में इंग्लिश चैनल के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। अगर टेक्नोलॉजी, हम कम्युनिकेशन के लिए बहुत बड़ा अहम रोल है स्पोर्टिंग में, मगर मैं कहता हूं कि इसको हमें और अच्छी तरीके से प्रमोट, प्लेटफॉर्म पर जानकारी नहीं है, हर प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट के बारे में जानकारी, जैसे आपने मेरे को बुलाया, तो बहुत से लोगों में एक स्पोर्ट स्पिरिट होती है ना, तो व्यक्ति को आगे बढ़ने की एक सोच मिलती है। और स्पोर्ट में टेक्नोलॉजी के प्रयोग करने से बहुत सी चीज़ें होती हैं वो आसान हो जाती हैं। जैसे कि मेरे को जब स्पॉन्सरशिप मिली, काफ़ी चीज़ें, मैं इंग्लैंड गया, टेक्नोलॉजी मैंने व्हाट्सअप, फेसबुक, इसका सही तरीके से यूज किया। जैसे टेक्नोलॉजी से हम किसी को मेल कर रहे हैं तो वो तुरंत हम डाक भेजेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, मेल से हम तुरंत उसका अपडेट ले सकते हैं। हमारे कितने ऐसे टेक्नोलॉजी में, पहले मैंने तेंजिंग नॉर्गे, आप सभी को बताऊं, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड में पहला पैरास्विमर हूं देश का जिसको महामहिम राष्ट्रपति जी ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से सम्मानित किया 2020 में। उसका ऐसे मेरे को पहले फॉर्म भरना पड़ता था, स्टेट में भेजो, फिर उसके बाद दिल्ली जाता था, पता पहुंचा या ना पहुंचा। टेक्नोलॉजी से आने के उपयोग से हमने अपनी जानकारी को उसको फिलअप किया, कब है सारी डिटेल भर के उसको फिलअप किया। और मैं चाहता हूं मेरा पहला जो मैनुअली रूप से हम उसको जब हम सेंड करते थे, वो 3 या 5 टाइम में जब मेरा पहला मेडल वो अवार्ड मिला। बट टेक्नोलॉजी के इसके उपयोग से मैं फर्स्ट टाइम में ही हम अपनी, क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी चीज को हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें। थैंक यू। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, वी आर अबाउट अ मिनट अवे, वो ये है कि आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम अ प्राउड पेट्रियट, एंड वी हैव बीन doing very well in sports recently of late in the last few years, Commonwealth, फिर Asian Games. तो मैं आपका आउटलुक समझना चाहूँगा, स्पेशली फॉर स्विमिंग एंड फॉर स्पोर्ट्स इन जनरल। आप क्या सोचते हैं, इंडिया किस राह पर है, हमें और क्या करना होगा टू बी अ स्पोर्टिंग विनिंग नेशन, और आपका क्या आउटलुक है इंडिया के फ्यूचर के लिए? स्पोर्ट में मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को स्पोर्ट एक नेशनल इंटरनेशनल के लिए हम खेलें, बहुत अच्छी बात है,
मगर मैं कहता हूं हर व्यक्ति को स्पोर्ट खेलना चाहिए। क्यों खेलना चाहिए? क्योंकि स्पोर्ट हमें एक आगे जीना सिखाता है। स्पोर्ट व्यक्ति होगा, कभी भी स्पोर्ट पर्सन होता है, उसके जीवन में कभी भी सुसाइड के थॉट्स नहीं आते हैं। कभी भी आप इसको रिसर्च कर लीजिए, मतलब अपवाद हो सकते हैं, मगर कभी भी कोई स्पोर्ट पर्सन ने एक सुसाइड अटेम्प्ट करने का ट्राई नहीं किया होगा। खुद की जिंदगी को अच्छी तरीके से जी लेना ही एक वो भी खिलाड़ी होता है। तो खेल मैदान में खेला जाए वो ही नहीं है, खेल हम अपने जिंदगी को सही रूप में लेकर दूसरों को प्रेरणा देकर जाएंगे तो मैं कहता हूं ये भी बहुत बड़ा खेल होता है। खेल की टेक्नोलॉजी की बात करें, क्योंकि 2014 में मध्य प्रदेश सरकार में कोई भी पॉलिसी नहीं थी। हमने इसके लिए काफी चैलेंजेस मतलब इनिशिएटिव लिया। आज मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में, पहले पैरा के लिए यही नहीं जानते व्हाट इज द पैरा। आप पैरा जानते हैं ना, जो पर्सन विद चैलेंज, उनका स्पोर्ट अलग से होता है, तो यही नहीं जानते थे व्हाट इज द पैरा, क्या होता है पैरा। फिर हमने उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, आज सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है और एनजीओ संस्थाएं बहुत इनको बढ़ाने के लिए अहम रोल बढ़ा रही हैं, क्योंकि स्पोर्ट में आगे आने से आप व्यक्ति का तो सर्वगुणी विकास होता ही है, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहता हूं स्पोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार की ही दायित्व नहीं है, हम और सबका दायित्व है स्पोर्ट को आगे बढ़ाएं और आने वाली प्रतिभाओं को उनको सही तरीके से उन पर एक रास्ता मिले, और हम उन चीजों को जिनके पास सब कुछ है, वो तो चीज बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिनके पास एक उनके पास एक रास्ता नहीं है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनको अगर मैं कहूँगा रास्ता मिलेगा तो वो समाज सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा अहम रोल निभाएंगी। और मैं कहता हूँ खासकर जो दिव्यांग स्पोर्ट पर्सन हैं, वो जिंदगी में बहुत कुछ अहम रोल निभाते हैं दूसरों के जीवन में। बहुत से लोग जो निराशा में डूब जाते हैं, निराशा से ग्रसित हो जाते हैं, वो कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर दिव्यांग खिलाड़ी को देखकर वो अपने आप में कहते नहीं, अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे भी सभी से कहता हूं, अगर हम भी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एक ही बात हमेशा दिल में मैं सोचता हूं, जिंदगी अगर युद्ध बनाकर दी तो क्या हर बार हथियार डाल दूंगा, लड़कर डटकर संग कर लूंगा। अगर जिंदगी रेत बनाकर दी तो ऐसे ही फिसलने थोड़े ही दूंगा, अपने आंसुओं से गोद कर सागर गागर बन सागर भर लूंगा। अगर जिंदगी दिव्यांग बनाकर दी तो ऐसे ही फिसलने थोड़े ही दूंगा, अपने आत्मविश्वास के सहारे भी चल लूंगा। व्यक्ति का आत्मविश्वास ही होता है, जो व्यक्ति का आत्मविश्वास अगर हाई है तो मैं कह सकता हूं दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है उसको हरा दे, वो जिंदगी में अपडेट करेगा। सपना देखिए, सपना देखने का हर किसी को राइट है, मगर सपने कभी निराशा के कारण बनते हैं। मैं टेक्नोलॉजी में बहुत से आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कि मैं इतना कार्य नहीं कर पाया, 12 घंटे काम करता हूं, हो ही नहीं रहा है, मैंने इतना काम किया, बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, बहुत सी चीजें एक अपने आप में कहते हम कर ही नहीं पा रहे। अरे जो जितना किया है उस पर हमें प्राउड फील करना चाहिए। और मैं कहता हूं जब कुछ करने की शक्ति है, जब कुछ करने की तमन्ना है तो उसको रास्ते भी मिलते हैं, उसको मंजिल भी मिलती है, उसको थॉट्स भी मिलते हैं। और मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति को दूसरा सहारा भी देते हैं। जो व्यक्ति अपने आप का सहारा बनता है उसको व्यक्ति दूसरा सहारा देते हैं, जो अपने आप का सहारा नहीं बनता उसको कोई भी सहारा नहीं देता। तो मैं कहता हूं अपने आप का सहारा बनिए, सब लोग सहारा देंगे और सब लोग सहारा देंगे तो हर काम आसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। Thank you Satyendra for an absolutely energizing few thoughts and filling us up with positivity, energy and determination. It has been a privilege talking to you for the last half an hour or so. Thank you for the audience for their patient listening as well. Thank you. Thank you. Thank you. What an inspirational session it was, means very inspirational story. I'll request Dr. Kanupriya Premchandra facilitate Dr. Satyendra Singh and Arpit.
Thank you so much, Satyen Singh ji, Kanupriya, and Arpit.